ठीक है। I need to sign in obviously, so let me log in with my root user. Although I'm not supposed to log in with the root user, but I don't know कि मैंने उसके अंदर IAM user कौन सा बना रखा है। तो अभी फिलहाल के लिए I just log in with the well architected tool. Right. So this is I have created in the morning batch. So just delete it first. Okay. Then go to the dashboard. And what you will see, sorry, go to the well architected tool. What you will see that the same page that I have mentioned in the PPT, you have the process, how it works basically. And after that, okay. And after that, we have the process कि हम कैसे start कर सकते हैं, and what are the benefits and features of this particular tool as well, है ना? तो ये भी हम देखेंगे. All right. And after that, we can define the workload. तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके benefits क्या क्या हैं. The first benefit is that get architectural guidance. We can get the guidance from the AWS. कि what type of how we basically design our system, how we actually try to architect the particular structure for the application that we actually want to deploy on, or we actually want to create on cloud. So we have the access to the knowledge and best practices used by the AWS solutions architect, है ना? तो यहाँ पर हम उनकी knowledge और उनकी best practices को access कर सकते हैं और उनकी knowledge से अपने system को develop करने के लिए help ले सकते हैं. We can also get guidance on how to design and operate workloads that are reliable, secure, and efficient, and also the cost effective. So these all pillars are also associated with the well architected framework of the AWS. So automatically, whenever we are actually designing the workload or designing the architecture of the particular system, then they must be checked so that it can operate it in a reliable, secure, efficient, and cost-effective manner. The second one is continuously improved architectures. So it must be capable so that if any particular change that we want to do, we will be able to change it with minimum amount of time. ठीक है? तो हमें कोई change track करना है, कोई particular milestone save करना है, या हमें एक particular timeline के बाद उसको update करना है, we can do that. Easily उसको हम milestone के form में save कर सकते हैं, and we can change the architecture over time. Whenever you require to initiate a new review process to help ensure your architecture is aligned with the latest best practices. And also it allows us then if we want to compare or check whether the it is compatible with the latest best practices of the AWS, then obviously we can review again and again. And also the third feature is that enable consistent governance. So when we apply a consistent process to help you review and measure your cloud architectures, so we can apply a consistent process so that we can actually actively monitor and measure the cloud architectures, and we can also understand the potential risks involved in the workload, or we can use the results to review and identify the next steps for improvement. So on the basis of the results that is provided and using the guidance report by this particular tool, we can also review and also identify what are the areas for the improvement, right? So ये हमारे कुछ features हैं. अब अगर मैं define workload पे जाता हूँ, just click on define workload, तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, for example test, और मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कि ठीक है, I want to test it for my application. ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, जस्ट क्योंकि ये मेरे पास, मैं इस तरीके से कई सारे वर्कलोड्स को क्रिएट कर सकता हूँ और उनको टाइम टू टाइम कंपेयर कर सकता हूँ. तो अगर मैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि ये वाला कौन सा था, तो एक तो तरीका है मेरे पास कि मैं किस डेट पे क्रिएट कर रहा हूँ, उससे आइडेंटिफाई कर लूँ. बट सपोज मैं डेट के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर पाना चाह रहा, है ना, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने किस किस स्टेप पर किस किस
कौन कौन से एक तरीके से वर्कलोड्स को मेजर करने की कोशिश करी है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल। तो ऐसे केस में मुझे कोई ना कोई हिंट डालनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन मैंने अपने हिसाब से चूज कर लिया है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको एक दो वर्ड भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे तो वहां पर ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिव्यू ओनर, कि आप किस ओनर को बोलोगे कि रिव्यू करे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ अपना नाम। एनवायरमेंट आप चूज करना चाहते हो कि दी सिस्टम दैट यू वांट टू रन योर वर्कलोड ऑन इज द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। यू कैन चूज ऑल्सो द रीजन। आप सपोज नॉर्थ वर्जीनिया में जाना चाहते हो या एशिया पैसिफिक के मुंबई में जाना चाहते हो, या वट एवर रीजन यू वांट टू चूज, यू कैन चूज देम। ठीक है, सपोज मैंने एक रीजन चूज कर लिया। आफ्टर दैट, और मैं एक से ज्यादा भी चूज कर सकता हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैंने केवल एक ही चूज करा, आई कैन चूज नंबर ऑफ रीजन। ठीक है, और आई कैन लीव इट लाइक दैट, नो प्रॉब्लम दैट। एंड अकाउंट आईडी, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कई सारे अकाउंट्स हैं, उन सबको एक साथ मैनेज करना है, तो यहाँ पर अकाउंट आईडी भी डाल सकता हूँ, अदरवाइज जस्ट लीव इट एक्सक्यूज लाइक मी दैट। सर। हाँ जी। सर वो मुझे एक पूछना था एक चीज सर, मेरे AWS अकाउंट में ना कल मेरे से गलती होगी, मैंने वो लैब स्टार्ट करे बिना वो व्यू डिटेल कर दिया था सर, मतलब मेरा लैब जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है AWS में। क्या करा था आपने? म्यूट डिटेल्स, व्यू सर डिटेल्स? मतलब AWS डिटेल पे क्लिक कर दिया था बिना स्टार्ट लैब किए, तो वो लैब वो स्टार्ट नहीं हो पा रही। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप दोबारा स्टार्ट करो। नहीं सर, मैंने वो एक्चुअली स्टार्ट लैब करने के स्टार्ट लैब पे क्लिक नहीं किया था, पहले गलती से मैंने AWS डिटेल पे क्लिक कर दिया था, तो जब मैं बार कब? बार स्टार्ट कर रहा हूँ वो लैब फील्ड आई जा रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यस आप सर। एक काम कर लो, गगन सर को सेपरेटली मैसेज कर दो अपनी आईडी के साथ, है ना। तो गगन सर टेक्निकल टीम को शेयर कर देंगे ये डिटेल। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ। ठीक है, आपने कुछ और तो नहीं करा है? नहीं इशू सर, आ रहा मैंने है वो स्टार्ट लैब करने के बजाय ना पहले AWS डिटेल पे क्लिक कर दिया था, फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट लैब किया तो लैब स्टार्ट नहीं हो रही। इससे कोई इशू नहीं है, ये तो कोई इशू नहीं है ना। आप एक बार गगन सर को रिपोर्ट कर दो, आई थिंक ही विल गेट इन टच विद द सर। टेक्निकल टीम। सर एक जी सेकंड, सर। एरर एरर कुछ एरर दे रहा है वो, या सिर्फ स्टार्ट नहीं हो रही है? स्टार्ट नहीं हो रही, वो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट फील्ड प्लीज एंड लैब एंड वेट फॉर इट टू कंप्लीट, ये लिखा हुआ आ रहा है बार बार। सर प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है फिर इसका इशू तो ये हो गया, तो पुराना इंस्टेंस को इसका बंद नहीं हुआ, या कोई नेटवर्क का इशू लग रहा है। तो एक बार पुराना वैसे इंस्टेंस। कुकीज, अपनी कुकीज वगैरह क्लियर करके देखना। नहीं सर, वो तो मैं साथ के साथ क्लियर कर देता हूँ सर। एक बार ब्राउजर की कुकीज वगैरह हिस्ट्री वगैरह क्लियर करके दोबारा ट्राई करके देखना। अगर आप एक नहीं बार है, ओके कुछ सर। नहीं बना, फिर भी कोई नहीं, फिर मुझे मेल करना इशू, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इनकॉग्निटो मोड में भी ट्राई कर सकते हो, एक बार रन करा के ना, शायद वहां चल जाए। अगर वाला इशू होगा तो इनकॉग्निटो मोड में चल हाँ तो जाएगा, है फिर ना। वरना मुझे मेल कर देना। हाँ, वरना आप सबको बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये जो पैरामीटर्स गिवन है, इफ यू वांट टू चूज एनी अदर थिंग, कि आपने कौन सा एप्लीकेशन चूज करना है, कौन सा रिसोर्सेज, मेटा डेटा, टैग्स, ये हालांकि ऑप्शनल है ना। तो आप इनको चूज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शनल्स हैं, तो मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं जा रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे आओगे तो यहाँ आपका पास आ रहा है कि आपने कौन सा लेंस अप्लाई करना है। ठीक है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि फिल्टर आउट की कौन सी चीज मेरे काम की है, कौन सी नहीं। तो यहाँ पर 4-5 लेंसेज गिवन है, और आप उनमें से कोई सा भी देखो। बाय डिफॉल्ट वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क लगा हुआ है। if you want to apply the FTR lens as well, तो you can click on that, है ना। और अदरवाइज आप इनको लीव भी कर सकते हो, तो सारी चीज आपकी यहाँ लग जाएंगी। अदरवाइज यहाँ आप देख सकते हो कम से कम एक चीज तो ऑलरेडी टिक्ड है ही। अगर आप यहाँ पर डिफाइन करोगे वर्कलोड को, क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो ये आपका वेल आर्किटेक्टेड टूल के अंदर वर्कलोड में टेस्ट नाम से वर्कलोड बन चुका है। ठीक है, एंड ओवरऑल स्टेटस यू नीड टू आंसर 58 क्वेरीज, और आपने अभी तक एक भी क्वेरी का आंसर नहीं दिया। सो जस्ट क्लिक ऑन टेस्ट वंस अगेन, और यहाँ पर आप देखोगे यू नीड टू कंटिन्यू रिव्यूइंग। आप इस पर क्लिक करोगे और AWS आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो 5-6 सेगमेंट्स मिलेंगे। अंडर दैट ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। वी हैव 11, 10, 13, 8, 10 एंड 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल एक्सीलेंस में वी हैव कि हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट योर प्रायोरिटीज आर। आप कैसे ये डिटरमाइन करोगे कि आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी के लिए आपको इनमें से कोई ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज everyone needs to understand their part in enabling business success.
have shared goals in order to set priorities for resources. This will maximize the benefit of your effort. Question do not apply to this workload. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको यहाँ क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है यू कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने सपोज आपने ये बोल दिया कि इवेलुएट एक्सटर्नल कस्टमर नीड की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये सेव हो जाएगा, अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और उस अगले क्वेश्चन में वी नीड टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हो, और फिर आपको उसके हिसाब से एक ऑप्शन चूज करना है। नाउ व्हाटएवर थिंग यू एक्चुअली वांट टू डिप्लॉय ऑन द क्लाउड और यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू, ठीक है, आप अपने उस टेस्ट केस के हिसाब से या जो आपका एग्जिस्टिंग केस है ना, उसके हिसाब से यू नीड टू रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ आप देख सकते हो ये केवल ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, ऐसे करके आपके पास 6 पैरामीटर्स और हैं। ये 5 तो पिलर्स हैं, ये वाला भी पिलर है लेकिन ये बाद में आया है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। ठीक, तो इसके ऊपर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी दैट 6 क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करने हैं। उसके बाद ये जब आप सबमिट करोगे तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करेगा कि अगर आप ये सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको इस तरीके के आर्किटेक्चर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में और विद सम एग्जांपल्स की इंडस्ट्री ने ये पर्टिकुलर एक तरीके से यूज करा है इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना, और यहाँ पर ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी एंड सो ऑन। ठीक, या यहाँ पर ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का तरीका रहेगा, इट विल गिव यू हाईएस्ट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, ये कंपैरिजन आपको दे देगा सारा। फिर दैट इज, फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि यू वांट टू फॉलो इट एंड यू वांट टू डिप्लॉय यूजिंग द फ्रेमवर्क और नॉट। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट योर डिटेल्ड रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टूल ओनली। तो यहाँ से आप वो डिटेल्ड रिपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इट विल टेक टाइम, ऑलमोस्ट यू नीड टू आंसर 60 अराउंड क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, और मैं केवल रेंडमली आंसर करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप आराम से तसल्ली से कभी बैठिएगा और फिर इसके बाद अपने नीड के हिसाब से जो भी, अगर आप सोच रहे हो कि सपोज मैं ये चीज बिल्ड करना चाहता हूँ, ये मेरे दिमाग में कोई डाउट है ना, तो उसके बारे में आप ये सारे आंसर्स डालने के बाद आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी कि यू शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यू कैन डू इट बाय योर ओन। ठीक है, कर लोगे एक बार ट्राई। If you want to know more about the well architected framework, then you should follow this particular thing. ठीक है, मैं काम करता हूँ, चूंकि मैंने एक वर्कलोड क्रिएट करा है, जस्ट डिलीट दिस वर्कलोड। हालांकि इसका कोई चार्ज नहीं है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर विंडो, है ना, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज मेरे साथ रहे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके ध्रुव। सो नाउ कमिंग टू द लैब, एक बार एक काम करते हैं, लैब पर लॉगिन कर लेते हैं यूजिंग द लैब कंसोल ओनली। सर मेरा अभी भी नहीं हो रहा है सर, मैंने आपको मेल कर दी। ठीक है, गगन सर को मेल कर दिया आपने, तो गगन सर इसको अथॉरिटीज तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक है राजू, मैं चेक कर लूंगा। गो टू स्टार्ट द लैब। ठीक है, हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद वी जस्ट गो टू कॉन्फ़िगर वर्कस्पेस। सर मेरा यहाँ पे ये फॉल्ट आया था, मैंने स्टार्ट लैब करने से पहले सर गलती से AWS डिटेल पे क्लिक कर दिया था सर, उसके बाद मैंने स्टार्ट लैब किया, तब से ये हो रहा है। ऐसा लैब होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं, हो सकता है कोई इशू हो। तो आपने सर को इन्फॉर्म कर दिया, डोंट वरी सर, अपना टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर देंगे इशू और फिर आपको कम्युनिकेट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जो चीज़ मैं कराने जा रहा हूँ आप उसको नोट करते रहना, और उसको जब आपकी लैब शुरू हो जाए तो आप अपने आप से इसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर।
अभी हमने कल क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करा था, और विद इन दैट क्लाउड फॉर्मेशन वी हैव सीन कि हम किस तरीके से ऑटोमेटिकली यूजिंग सम टेम्पलेट्स, यूजिंग द क्रिएशन ऑफ स्टैक्स, वी कैन एक्चुअली डिप्लॉय द सिस्टम्स। तो वही चीज में मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं EC2 इंस्टेंस को कैसे इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है, क्योंकि EC2 इंस्टेंस में वी नीड टू अप्लाई सेवरल पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, है ना, और कौन कौन से पैरामीटर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड फॉर्मेशन, जो कि मैंने कल यूज करा था, तो आप देख सकते हो यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन आ रहा है। अदरवाइज आप सीधे सीधे यहाँ सर्च में जाके भी क्लाउड फॉर्मेशन टाइप कर सकते हो। And after that, what you need to do is you need to, by default one template is already created because ये हमारे इस रोल के साथ है, लैब के साथ, है ना। तो you need to click on create stack और create stack with new resources standard। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक कर लोगे, you need to click on create template in designer, और फिर आपको दोबारा create template in designer पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये डिजाइनर विंडो ओपन हो जाएगी, और उस डिजाइनर में you need to configure the EC2 instance, जो कि हम अब करने जा रहे हैं। So you need to select the resources type, the EC2, expand the EC2, and select the instance and drag and drop to this template page। ठीक है, ये आ गया है आपका EC2 instance। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, there we go। ठीक है, तो ये हमारा EC2 instance आ चुका है। इसका नाम ये है, if you want to change the name then obviously you can change। Suppose ये मेरा है EC2 INS। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव, तो ऑटोमेटिकली वी नीड टू रिफ्रेश इट हियर। नाउ अगर मैं यहाँ पर बिना कोई चीज अपडेट करे इस EC2 इंस्टेंस को एज इट इज लॉन्च करना चाहता हूँ, है ना, तो देखते हैं कि क्या ये लॉन्च होगा। ठीक है, एक बार जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट स्टैक, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट स्टैक you need to go to next, you need to put a name, suppose EC2 test, next review and submit। ठीक है, तो ये मेरा क्रिएशन इन प्रोग्रेस आ चुका है। और अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, यू विल बी एबल टू सी कि ये रोल बैक भी हो गया है, डिलीट भी हो गया है। ठीक है, रिफ्रेश यहाँ पर करते हैं EC2 टेस्ट में, आप देख सकते हो क्रिएट फील्ड, द क्रिएट फील्ड इज बिकॉज प्रॉपर्टी इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी, इमेज आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इमेज आईडी ही डाल के देखते हैं। इमेज आईडी डालेंगे कैसे, उसके लिए काम करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पर मैं EC2 विंडो ओपन कर लेता हूँ, EC2 इंस्टेंस। और EC2 इंस्टेंस को अगर मैं ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली आई विल बी एबल टू क्रिएट द EC2 इंस्टेंस बिफोर गोइंग टू क्रिएट इट विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन टूल। तो यहाँ पर मैं एक लॉन्च इंस्टेंस कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने लाइनक्स 1 नाम से सिस्टम बनाया, मशीन आईडी लाइनक्स ले लेते हैं। ठीक है, 6486 ले लेते हैं, T2 माइक्रो ले लेते हैं, की पेयर हम चूज कर लेते हैं कोई सा भी जो भी हमारे पास है, सपोज VM1। ठीक, एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद हम एज इट इज इसको लॉन्च कर देते हैं। अभी मैं मैनुअली लॉन्च कर रहा हूँ, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि मेरे को कौन कौन सी चीजें चाहिए। ठीक है, तो वो मुझे पता लग जाए कि हाँ ये चीज मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंस, तो जब आप इंस्टेंस पे देखोगे, आप इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू सी कि हाँ ये जो एरर दे रहा है, प्रॉपर्टी इमेज आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी। तो यहाँ देखते हैं इमेज आईडी कहाँ पर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कोई भी स्टूडेंट की इमेज आईडी इन सारे में से कहाँ पर मिलेगी, कौन सी है आईडी, कौन सी इमेज आईडी है यहाँ पर, किस पर्टिकुलर एरिया में मुझे मिलेगी इमेज आईडी? एनीवन, कोई भी? कोई आइडिया नहीं है? दिस इज बेसिकली द Amazon मशीन इमेज आईडी, AMI। ठीक है, तो AMI आईडी में एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ,
the very first thing that I came across is the machine image, Amazon machine image. तो अगर मैं यहाँ पर देखो Linux चूज करता हूँ तो this is telling me the AMI ID. ये AMI ID है जो कि 64 बिट के ARM प्रोसेसर से रिलेटेड है, और अगर मैं x86 चूज करता हूँ तो ये AMI ID होगी ये वाली। आप देख सकते हो A63 एंड में आ रहा होगा, A63 एंड में आ रहा है। दिस इज द Amazon मशीन इमेज ID। ठीक, इस इमेज को मान करके वो एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है लिनक्स टाइप का। तो ये मुझे इंस्टेंस आईडी चाहिए, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद हम इस टेम्पलेट के अंदर जाते हैं EC2 टेस्ट के अंदर, और इसको व्यू इन डिजाइनर ओपन करते हैं। और हम हेल्प वाला डॉक्यूमेंट जो हमने कल डिस्कस करा था EC2 इंस्टेंस का, वो ओपन कर लेते हैं, सो दैट कि हम देख पाए कि किस तरीके से हमें इंस्टेंस आईडी या बाकी सारी डिटेल्स प्रॉपर्टी के अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो एरर आ रही थी इंस्टेंस इमेज आईडी की, तो इमेज आईडी को लिखने का तरीका ये है ना। तो अगर प्रॉपर्टी के अंदर मैं इमेज आईडी लिखता हूँ तो आई शुड राइट लाइक दिस। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये मेरी मशीन इमेज हो गई, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाते हैं और प्रॉपर्टी में मशीन इमेज आईडी डालते हैं। इमेज आईडी मुझे यहाँ से मिल गई है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और आप देख सकते हो ये एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो मुझे डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स के अंदर ये मशीन आईडी डाल देता हूँ। ये आ चुकी है मशीन आईडी। ठीक है, और अब यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देते हैं, और विदाउट डूइंग एनीथिंग एक काम करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट हमारी रेडी है, ये टेम्पलेट ऑलरेडी आ चुकी है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं टेस्ट EC2, न्यू कर देते हैं इसको, दूसरा वाला है। ठीक है, गो टू नेक्स्ट, गो टू रिव्यू एंड नेक्स्ट सबमिट, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो क्रिएट एंड प्रोग्रेस आ रहा है। एक बार थोड़ी देर में इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये क्रिएट हो गया। यू कैन सी दैट रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड, ये हो चुका है, और इसने एरर क्रिएट नहीं करी है, अभी तक कोई एरर नहीं दी है। ठीक है, कोई एरर नहीं आई है। अब हम EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कितने इंस्टेंसेस रनिंग मोड में हैं, क्या कोई दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ। यू कैन सी दैट कि एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, और ये इंस्टेंस मेरा ये वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, और वो इंस्टेंस केवल और केवल मशीन इमेज आईडी से करा। वो मशीन इमेज आईडी मुझे क्या बताएगी कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से कोर का प्रोसेसर एक तरीके से चूज करना है। और आप यहाँ देख सकते हो जो इंस्टेंस टाइप है दैट इज m1.small, m1.small है। क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो जो इंस्टेंस टाइप था यहाँ पे इंस्टेंस टाइप है ना, तो इंस्टेंस टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू डली हुई थी, कल हमने देखी हुई थी। इंस्टेंस टाइप में डिफॉल्ट वैल्यू इज m1 स्मॉल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंस्टेंस टाइप मेंशन नहीं करा है, तो वो इंस्टेंस टाइप जो आया है वो कितना आया है, m1.small आया है। ठीक है, और ये सारे पैरामीटर्स उसके साथ हैं। ठीक, अब बात आती है कि मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे चाहिए की, और मैंने की प्रोवाइड करी नहीं। यस ध्रुव। सर ये ना मैंने इमेज एक नए स्टैक में डालने की कोशिश की, हाँ और मतलब उसके अंदर रोल बैक इन प्रोग्रेस आ रहा है। हाँ, तरीका ठीक लिखा है तुमने, गलत तो नहीं लिखा। मतलब जैसे आपने तो ऑलरेडी एक स्टैक बना लिया, उसका रोल बैक आ लिया और उसके अंदर चेंजेस किया ना, हाँ, मैंने नया बनाया, मतलब उसके क्रिएट अंदर करा इमेज है। आई डाली। ऐसा है तो मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट स्टैक विद न्यू रिसोर्सेज, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं डिजाइनर के अंदर। बिल्कुल फ्रेश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर EC2 चूज कर लेते हैं। एरर आ रहा है कि एनकाउंटर्ड अनसपोर्टेड प्रॉपर्टी इमेज आईडी।
तो आपने इमेज आईडी सही से कॉपी नहीं करी है सिंस लाइक। ठीक है, एनीवेज एक बार देख लेते हैं, आपके सामने दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे इमेज आईडी लिखनी है। तो पहले तो देखते हैं इमेज आईडी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इमेज आईडी ये कॉपी कर ली मैंने, और यहाँ पर मुझे जो डेटा देना है इमेज आईडी का वो देना है ये वाला, है ना, ये वाला। तो ये मैं सीधे यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इंस्टेंस से जाके इमेज आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। मैं और कोई डेटा नहीं दे रहा। अब देखते हैं कि क्या इसके बेसिस पे कोई भी सिस्टम लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, रोल बैक नहीं होना चाहिए, अगर हमने ठीक ठीक करा है तो रोल बैक नहीं होना चाहिए। गो टू नेक्स्ट, एक नाम दे देते हैं EC2 INS। ठीक है, नेक्स्ट सबमिट। मेरे में तो नहीं आ रहा रोल बैक इनिशिएटेड। रिसोर्स क्रिएशन आ गया, एक बार यहाँ देख लेते हैं कि वो क्रिएट हुआ क्या। इंस्टेंसेस, थर्ड इंस्टेंसेस इज पेंडिंग, यहाँ आ चुका है देखो। ठीक है, तो आपने शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज गलत डाली होगी, कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ होगी। कॉपी पेस्ट करते टाइम ध्यान रखो, आपने सपोज इसको ओपन करा है ना, तो आपको कॉपी यहाँ से करना है, ऐसे मत करना, यहाँ से कॉपी करना। ठीक है, यहाँ से कॉपी करोगे तो वो केवल ये चीज कॉपी करेगा, और यहाँ पर कोई स्पेस या एक्स्ट्रा कुछ भी चीज आ रही है वो कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेरे इंस्टेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं, बट द थिंग इज कि मैंने यहाँ पर m1.small टाइप का सिस्टम स्टार्ट करा है, जो कि मुझे करना था t2.micro। तो t2.micro अगर करना था तो मुझे t2.micro लिखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा और वो होगा बाय डिफॉल्ट m1.small। क्यों होगा? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू मैंने m1.small ही यहाँ मेंशन कर रखी है। इंस्टेंस टाइप में बाय डिफॉल्ट m1.small मेरी एग्जिस्ट करती है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब द थिंग इज कि इफ आई वांट टू टेक द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो मैं कैसे इसका एक्सेस लूंगा? मैं इसको कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के लिए EC इंस्टेंस कनेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं कनेक्ट का बटन दबा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कनेक्ट हो रहा है। It is saying establishing connection. Let's wait for a few seconds. जब तक ये बोलता है EC2 कनेक्शन के बीच में एस्टैब्लिश हो रहा है कनेक्शन। जब तक ये कनेक्ट होता है हम देख लेते हैं। आप देखो ध्यान से, ये तीनों ही इंस्टेंसेस अवेलेबिलिटी जोन 1A के अंदर, यानी किसी एक सबनेट के अंदर ही लॉन्च हुए हैं। यानी इसकी वर्टिकल स्केलिंग हुई है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग चाहूँ तो मुझे वो सबनेट आईडी अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं नहीं दे पाया हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ये लॉन्च हुए हैं। ठीक, सबके ऑब्वियसली पब्लिक आईपी एड्रेस अलग अलग है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप ध्यान से देखो, सिक्योरिटी ग्रुप इनके डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्ट वाला है वो चूज हो गया है ऑटोमेटिकली। अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप ही एसोसिएट हो इस इंस्टेंस के साथ, तो आई नीड टू अटैच दैट सिक्योरिटी ग्रुप ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों की इंस्टेंसेस के की नेम पे आ रहा है डैश, क्योंकि जब मैंने इंस्टेंस लॉन्च करे थे तो यहाँ पर कोई भी की नेम नहीं मेंशन कर रहा था। अगर मैं की नेम नहीं मेंशन करता हूँ तो यहाँ पर ये हमेशा एस्टैब्लिश कनेक्शन आता रहेगा, या फिर कोई एरर आ जाएगी अनेबल टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। क्यों?
क्योंकि उसको एस्टेब्लिश करने यहाँ हो सकता है शायद यहाँ पर ना आए, ठीक है, बट अगर मैं उसको पुट्टी के थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ तो पुट्टी में क्या चीज चाहिए होती है, मुझे दो चीज चाहिए होती है। एक तो उसका आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस तो मुझे मिल जाएगा अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, है ना, कनेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस तो मुझे मिल गया, लेकिन किस आईडी से लॉगिन है वो की चाहिए, और वो की मैंने यहाँ पर डाली नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट विद पुट्टी। लेट मी चेक इट विद दिस वंस अगेन, ठीक है। तो अगर मैं पुट्टी के थ्रू उसको कनेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट करा, SSH आईडी के बिना अगर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा तो क्या ये कनेक्ट होगा? ये नहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं SSH आईडी के थ्रू भी कनेक्ट करना चाहूंगा, सपोज मैं डालता हूँ SSH आईडी दे देता हूँ, तो कौन सी डालूं, मेरे पास तो बहुत सारी की है ना। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आईपी एड्रेस, SSH ऑथराइजेशन के लिए की कौन सी दूं? देखो कनेक्शन फेल आ गया, ठीक है। मैं कौन सी की दूं, लाइनक्स सर्वर दूं, VM1 दूं, VPC1 दूं, कौन सी दूं? ठीक है, सपोज मैं VM1 दे देता हूँ जस्ट फॉर चेकिंग, ठीक। एक बार देखते हैं कि क्या ये रन होता है। ये नहीं होगा रन, ठीक है। यहाँ पर आप देख चुके हो ये एरर आ चुकी है, और वो ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे सिस्टम लॉन्च तो हो गए, बट आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दी सिस्टम। इसका मतलब ये है कि चूंकि जब मैंने एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द इंस्टेंसेस आई वांट टू प्रोवाइड, यू कैन से दैट्स कनेक्शन टाइम आउट, ठीक है। तो आपका ये कनेक्शन नहीं हुआ एस्टेब्लिश, इसका मतलब आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप एक्चुअल में कोई भी परफॉर्म करना चाहते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो यूजिंग दैट कंप्यूटेशनल पावर, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन। तो ऐसे केस में द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू कनेक्ट द इंस्टेंसेस नॉट लाइक दैट, जैसे अभी हमने कनेक्ट करे थे, इनके थ्रू कनेक्ट ना करके हम क्या करें, इनको टर्मिनेट कर देते हैं, और हम कुछ पैरामीटर, देखो यहाँ देख सकते हो आप, सबके अवेलेबिलिटी जोन सेम है, सबके सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफॉल्ट है ना, और इन दोनों में की क्या है, कुछ भी नहीं पड़ी हुई। तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्लाउड फॉर्मेशन की टेम्पलेट में एक नई टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, एक नया स्टैक क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उस स्टैक के अंदर हम लोग कुछ और पैरामीटर जो हमारे हिसाब से हैं वो डालने की कोशिश करेंगे, खासतौर से की। और अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली स्केल करना चाहते हैं, तो उस हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए हमें अलग अवेलेबिलिटी जोन चूज करना पड़ेगा, और अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है अलग सबनेट चूज करना पड़ेगा, तो हमें वो सबनेट आईडी भी डालनी पड़ेगी। तो एक बार उस तरीके से आपको एक बार और बता देता हूँ, ताकि आप उन सबनेट आईडीज के थ्रू भी अपने इंस्टेंसेस क्रिएट कर पाओ ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जो भी एरर्स हो सकती हैं पॉसिबल, आपको उनको ओवरकम करना भी आना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमेज आईडी, पहले वो डाल देते हैं, इमेज आईडी, ठीक है। इमेज आईडी, और यहाँ इमेज आईडी कौन सी डालनी है, मुझे इमेज आईडी डालनी है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो मैं लाइनक्स टाइप का सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इमेज आईडी डाल दी है, ठीक। उसके बाद ओके, उसके बाद मुझे क्या डालना है, उसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें डालना है सपोज इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप मैंने चूज करा है M1 स्मॉल। अगर मैं चाहता हूँ T2 डॉट मीडियम चूज करना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंस टाइप, और यहाँ लिख लेते हैं हम सपोज T2 डॉट मीडियम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या डालना है, मुझे डालनी है की, उसका नाम है आई थिंक की नेम, यस की नेम, यहाँ से ले लेते हैं की नेम, ऑटोमेटिकली ये भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने की नेम डाल दिया, और की नेम में कौन सा ले सकता हूँ, सपोज मैंने की नेम लिया, कौन सा की था इसमें, VM1, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और सीधे सीधे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो VM1 नाम से कॉपी हो गई मेरे सिस्टम के लिए की। उसके बाद दो चीज और है कि अगर मैं चाहता हूँ किसी सबनेट आईडी में क्रिएट करना, ठीक है, तो सबनेट आईडी के लिए हम यहाँ पर सबनेट चूज कर लेते हैं, सबनेट आईडी, ठीक है। और वो सबनेट आईडी आप कहाँ से ढूंढोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबनेट आईडी आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक।
ये रही सबनेट आईडी। जिस भी सबनेट के अंदर आपने वो इंस्टेंस क्रिएट करा था वो सबनेट आपका आ जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज द सबनेट्स, ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्टेंसेस के अंदर जा सकते हो, वीपीसी के अंदर मिल जाएगा आपको। तो एक काम करते हैं, वीपीसी पे चलते हैं। वीपीसी के अंदर सबनेट्स एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स सारी डिटेल मिल जाएगी आपको, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सबनेट के अंदर किस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ एसोसिएट होना चाहते हो। ये है मेरे सबनेट्स, 6 सबनेट्स हैं। सपोज मैंने अभी वो जो सबनेट यूज करा था वो कौन सा था, वो है मेरा A25, है ना। A25 कहाँ गया, A25 ये वाला सबनेट था। ये सबनेट जो था मेरा, ये कौन से जोन में था एक बार चेक कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट 1A में था। अगर मैं चाहता हूँ 1D में चलाना, तो 1D के लिए मुझे ये वाला सबनेट आईडी कॉपी करना पड़ेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सबनेट और उस सबनेट को हम कॉपी कर लेते हैं, सबनेट आईडी यहाँ से, ठीक है। और वो सबनेट आईडी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो सबनेट आईडी आ गई मेरी ये, ठीक। और सबनेट आईडी के बाद हमें एक चीज और डालनी है, वो क्या है, सबनेट आईडी ये है, ठीक है। और उसके बाद हम डालते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप आईडी आप देख सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब किस सिक्योरिटी ग्रुप में मेरे को एक्चुअल में डालना है, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप मुझे मिलेंगे EC2 के अंदर, यहीं पे मिल जाएंगे। वीपीसी में देख लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स, यहाँ पे भी था। ये है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप्स में मेरे पास 5 सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं। सपोज जो अभी रिसेंटली वाला बना है, ये बना है लॉन्च विजार्ड 4, तो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, ठीक। और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। बट द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को लिखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे लिखना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। मैंने ये ब्रैकेट भी लगाने हैं, ठीक है। अगर ये नहीं लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये एरर देगा। देख लेते हैं कि क्या वाकई में एरर देगा या नहीं देगा, ठीक। ये मेरा पूरा हो चुका है, 5 पैरामीटर डाल दिए मैंने। मशीन इमेज आईडी डाल दी, इंस्टेंस टाइप डाल दिया, की नेम डाल दिया, सबनेट आईडी डाल दिया और सिक्योरिटी ग्रुप आईडी डाल दिया, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार और इसको सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं स्टेप को और फिर लॉन्च करते हैं। देखते हैं कि क्या वाकई में ये हुआ या नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक एरर आनी चाहिए, EC2 और 5 प्रॉपर्टीज कर देते हैं, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज मैंने 5 प्रॉपर्टीज के अंदर मेंशन कर दिए, इसका नाम दे दिया मैंने EC2 5 प्रॉपर्टीज, ठीक। मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक एरर आएगी। वो एरर दिखाने के लिए कि वो एरर क्या है, आपको ये केस मैंने दिखाया है। क्लिक ऑन रिफ्रेश, आप देख सकते हो रोल बैक इन प्रोग्रेस आ गया। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ रोल बैक इन प्रोग्रेस आएगा और ये एरर देगा, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज मस्ट बी टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। और जो मैंने यहाँ दिया था आपको टेम्पलेट के अंदर, वो क्या दिया था, वो एक केवल और केवल स्ट्रिंग था। ये स्ट्रिंग है, मुझे इसको एक्चुअल में स्ट्रिंग की फॉर्म में ना डालने के बजाय क्या डालना है, इसको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में डालना है। मतलब अगर मैं इसको व्यू इन डिजाइनर करता हूं और व्यू इन डिजाइनर में जाने के बाद मैं इस इंस्टेंस को इसको क्लिक करके अगर मैं यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को कुछ इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। देखो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है, ये जो स्ट्रिंग्स लिखी है मैंने, ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है, मतलब इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट को लगा देता हूं और ऐसे ही यहाँ पर लगा देता हूँ, डन, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर दो, सेव हो जाएगा। ये क्रिएट स्टैक कर लो, यहाँ पर मुझे एक नया नाम डालना पड़ेगा। सपोज ये है मेरा फाइनल EC2 स्टैक, ठीक। नेक्स्ट, सबमिट। और अब आप देखोगे कि ये क्रिएशन हो चुकी है और ये रोल बैक भी नहीं होगा। इंस्टेंस डिटेल पे आओगे आप तो आप देखोगे कि ये एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो दिस इज स्टार्टिंग, ये पेंडिंग स्टेट में है, थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा।
और आप देखो ध्यान से, मैंने एक जो पहला वाला क्रिएट करा था वो यूएस ईस्ट 1A में करा था, दूसरा वाला मैंने जानबूझ के यूएस ईस्ट 1D में क्रिएट करा है। अगर आपने कोई चीज चूज नहीं करी थी तो बाय डिफॉल्ट वो यूएस ईस्ट 1A में हो रहे थे दोनों के दोनों इंस्टेंसेस, ठीक है। और दोनों ही T1 डॉट स्मॉल हुए थे, आप देख सकते हो ये वाला T2 डॉट मीडियम है, ठीक है। सॉरी M1 डॉट स्मॉल हुए थे, ये T2 डॉट मीडियम है, क्योंकि मैंने मेंशन करा है कि कौन सा आपको टाइप रन कराना है, ठीक है। प्लस आप देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 4, जो इसका सिक्योरिटी ग्रुप था लेटेस्ट वाले का, उसी का सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो बाय डिफॉल्ट मुझे अगर एक भी जगह चेंज करने हैं तो किसी इंस्टेंस के लिए अगर लॉन्च विजार्ड 4 मैंने सिक्योरिटी ग्रुप लिया है तो केवल इसी में चेंज करूंगा, ठीक है। और आई विल बी एबल टू एक्सेस यूजिंग PM1 की पेयर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले वाले को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको क्लिक करते हैं और इसको करते हैं कनेक्ट, और यूजिंग कनेक्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या ये कनेक्ट होता है। हैंग हो गया क्या? इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे वाले को, देखते हैं कि क्या ये कनेक्ट होता है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ, शायद कनेक्ट हो जाना चाहिए अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो। हमने VM1.pam दिया है ना .ppk, VM1.ppk का पाथ दे देते हैं, VM1.ppk ओपन, देयर यू गो, है ना। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है, शायद Amazon पर कोई दिक्कत आ रही है लेकिन यहाँ से कनेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये सिस्टम कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर की डाल दी है, वहां पर मैंने की नहीं डाली थी इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं खुद से। कोई भी इंस्टेंस अगर हमें क्रिएट करना है, या कोई भी इंस्टेंस बेसिकली कोई भी चीज पर्टिकुलरली ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करनी है यूजिंग सम टेम्पलेट्स, तो हमें एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा फॉर एवरी रिसोर्स दैट वी एक्चुअली वांट टू लॉन्च और यूज। तो उसके लिए हम एक स्टैक क्रिएट करेंगे, स्टैक को हम टेम्पलेट के थ्रू एक तरीके से क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, बेसिकली उसको प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे कि हाँ इस फैशन में एक्चुअली आई वांट टू क्रिएट अ सिस्टम, और फिर उसके बाद वी विल कनेक्ट द इंस्टेंस, और वो हम एक तरीके से फिर उसके बाद हम लोग अपना क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू अपने सिस्टम्स को या अपने रिसोर्सेज को लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज क्लियर हो गई है तो एक काम करते हैं, सबको टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने का एक तरीका ये भी था मेरे पास, एक तरीका ये भी है कि मैं जो क्लाउड फॉर्मेशन के स्टैक्स क्रिएट करे मैं उनको भी 1 बाय 1 डिलीट कर दूं। तो एक काम करते हैं, इनको भी एक एक करके डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज देम। तो एक एक करके we'll delete all the stacks। ठीक, तो सारे हमने स्टैक भी डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू सी, ये देख सकते हो अभी 3 डिलीट हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये इंस्टेंस टर्मिनेट हो चुके हैं। सो आई एम डन। ठीक, तो इस तरीके से हम बेसिकली अपने
इंस्टेंसेस को EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करना अभी हमने यूजिंग द क्लाउड फॉर्मेशन सीख लिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ध्रुव कपूर भी कह रहे हैं कनेक्ट हो गया, वेरी गुड, ओके, इट्स क्लियर टू यू, थैंक यू ध्रुव फॉर द रिप्लाई। सो एक काम करते हैं, अब लेते हैं